Hi, another Jupiter and Venus Okhetri exalted, etc. Video and some case studies. These are my own clients. One celebrity I will talk about, uh, celebrity drama queen celebrity, and another is one of my client, not a celebrity. So first I will talk about my own client. She is having Venus exalted in Piscean, and she is having Jupiter also in Piscean only, and another planet, I think Mars is also there. I don't remember exactly, but she is having Jupiter and Venus both in Piscean, that I remember. The Swakhetri Jupiter with exalted Venus. She she is Aries ascendant, so though both strong planets in Swakhetri, which is Swakhetri and exalted, uh, falls in her 12th place. She lives in a foreign country and very successful in their profession, and they left India and started from scratch there, and now they are having, I think, 14 homestays. 1 minute. Now they are having 14 homestays. So the special character of Jupiter and uh, Jupiter as well as Venus being strong, uh, some special character I will tell you, that she has a whole timer maidservant which she has taken from India. One auntie ji is there. She has taken from India, whole full timer she is, and one day I called her. I was doing her healing, yes, doing her healing or husband's healing. I called her to talk, and she was doing, it was a video call. She was doing pocha. I was very shocking. I was very shocked. You have a full timer servant, na? Why are you doing jhadu pocha yourself? So with a mop, she was cleaning the house. After that only she talked to me. So I was very shocked. She was telling, no, Auntie Ji is very old. How old is she? 70 or something like that. So matlab, you have kept a servant who is that old that she cannot work. But she is salaried and she is getting all facilities. Then keep at least someone who is young enough and who can do all the household and all. She was saying, no, actually, Auntie Ji does not want to go back to India because Auntie Ji might have her own troubles. But the mentality of the girl with Venus exalted and Jupiter Swakhetri is she kept a servant. The servant is full timer, getting salary with all remunerations and clothes and medical facilities and everything she is getting. But owner of the house is doing jhadu pocha, means mopping or whatever. Why? Because she is old. How old is she? She might be 60. So I am 55. I have my jhadu pocha wali. She got back after 9 years, I think. She does jhadu pocha, and everything else I do myself. So that lady was, she kept full time a servant and she was doing work of the servant only. Full time a servant, you do understand it very well how highly priced those are. ठीक है, तो फुल टाइमर सर्वेंट रख के घर का काम खुद करना, ये जुपिटर या वेनस एक्साल्टेड नहीं तो स्वखित्री कर सकते हैं. मतलब कुछ लोग होते हैं जो सर्वेंट रखना पसंद नहीं करते, नहीं रखते. कुछ लोग होते हैं जो सर्वेंट रखते हैं और सर्वेंट से काम लेते हैं. लेकिन सर्वेंट रख के खुद काम करना और सर्वेंट को फैसिलिटी देना, ये वेनस एक्साल्टेड कैन डू. अनदर वेनस एक्साल्टेड मैं देखी जिसका ननद मेरे पास आई थी भाभी का चार्ट लेके, एंड शी वॉज कंप्लेनिंग अबाउट भाभी. ननद herself is of bad character, and I know, I have seen her horoscope and she has confided to me also कि she is having affair with someone of her father's age, जिनकी बेटी उसकी एज की है, ऐसा किसी के साथ अफेयर चल रहा है. ठीक है, भाभी का हॉरोस्कोप लेके आई थी कि भाभी इज़ नॉट गुड, एंड हॉरोस्कोप मैं देखी, आई वाज शॉक्ड. शी वाज हैविंग वेनस एक्साल्टेड एंड शी इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. सो व्हेन आई टोल्ड हर
कि no, your भाभी is very good human being and she is really great. Gradually she started speaking कि her brother, like she is married, she is having extramarital, exactly same way the brother was having one affair and he got married in a rage. There was a breakup and immediately he got married to some other girl, but the brother was continuing with the previous girl. एंड इस समय में उसको भाभी का कंप्लेन लाना चाहिए था. भाभी वॉज दैट गर्ल, सिस्टर इन लॉ वॉज सो गुड, शी वॉज टॉलरेटिंग एवरीथिंग द husband is rejuvenating the previous relationship, and sister-in-law also is same. मतलब the client who came to me, she herself had affair with a married father's aged man, and her brother was also broke up, got married after the rejuvenating the previous relationship. And भाभी इतनी अच्छी है जिसका Venus was exalted, and people were complaining, that lady was complaining about भाभी is not good, भाभी शक की है, शक कर रही है ऐसे, जबकि she knows it very well कि ना मेरा कैरेक्टर ठीक है ना मेरे भाई का कैरेक्टर ठीक है. और भाभी बेचारी इतनी अच्छी है कि ऐसा फैमिली में एक Venus exalted घुस के, Venus exalted people are, they don't have any intention, उनका कोई डिज़ायर ही नहीं रहता है एक्स्ट्रामैरिटल और ये सब करने का. वो जैसा भी Venus exalted, Jupiter exalted, इसको जितना भी थर्ड क्लास हस्बैंड या वाइफ मिल जाए वो निभाने का भरपूर कोशिश करते हैं. लेकिन मेरे पास क्लाइंट कौन आते हैं, मैक्सिमम क्लाइंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके पास क्वालिटी हस्बैंड क्वालिटी वाइफ है लेकिन कंप्लेन करने आ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. दैट इज़ द ट्रबल ऑफ लाइफ, कि जिनके हस्बैंड एंड वाइफ जिनके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो शायद उनका वेनस एंड जुपिटर एक्साल्टेड है, और जो कंप्लेन करने आए हैं वो खुद ही मान रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर थोड़ा ख़राब है, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ. दीज आर एक्चुअली लैक ऑफ जुपिटर वेनस एक्साल्टेड, जुपिटर वेनस स्वखेत्री. ठीक है. सो 2 cases I told. Another family, yesterday only I told, who were having Jupiter Venus both Swakhetri or exalted and all, husband wife both were having. Their husband wife had perfect combination and perfect understanding in between them. उनका एक दूसरे से झगड़ा या ट्रबल कुछ भी नहीं होता है, because both are having Jupiter and Venus Swakhetri and Swakhetri or exalted and something like that. तो खुद में तो झगड़ा नहीं होता है. हाँ, बाहर वाले जो जहाँ जॉब करने जाते हैं वहाँ से बहुत ट्रबल आती है. नाउ टुडे आई टॉक्ड अबाउट 3 Venus exalted. उसके बाद एट लास्ट आई विल टॉक अबाउट अ सेलिब्रिटी हु इज अ ड्रामा क्वीन. गेस हु इट इज़, हु इज़ हैविंग, इंटरनेट से जो मुझे गूगल करके जो बर्थ डेट मिला, बर्थ टाइम तो नहीं मिला है, बर्थ डेट जो मिला उससे मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ कि शी इज़ हैविंग जुपिटर इन पुष्या, ड्रामा क्वीन. वो कुछ भी पोस्ट डालती है, अगर रो भी रही है ना, पब्लिक हंसने वाला इमोजी देते हैं. शी इज़ अ ड्रामा क्वीन. शी इज़ हैविंग जुपिटर इन पुष्या एंड शी इज़ हैविंग वेनस इन स्वाति. समझ रहे हो? स्वखेत्री वेनस विथ एक्साल्टेड जुपिटर. शी इज़ हैविंग आई थिंक सम अदर प्लैनेट ऑल्सो स्वखेत्री. आई एम फॉरगेटिंग विच एवर इट इज़. शी गॉट मैरिड वंस, एक बार शादी हुई और शादी के बाद पता चला कि हस्बैंड चीट थे. दैट हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड विद अ चाइल्ड, सो गॉट डाइवोर्स. शी गॉट मैरिड सेकेंड टाइम. दिस मैन वाज ऑल्सो अ चीट and this man was beating her. That lady was having Saturn Rahu, like Shapit Yoga. That lady was having Shapit Yoga with Jupiter exalted and Venus Swakhetri. Jupiter exalted Venus Swakhetri होने के बाद भी and Mercury in its own नक्षत्र ज्येष्ठा. इतना अच्छा प्लानिटरी पोजिशन, मतलब जुपिटर वेनस मरकरी तीनों अगर ठीक ठाक है, मतलब जुपिटर वेनस वेरी गुड, मरकरी ऑल्सो ठीक ठाक, then why that person is suffering so much? That person is having Saturn Rahu conjunct. तो शापित जोग जिनका रहता है उनको ठगने के लिए पूरा दुनिया वेट करता है कि कब वो आए मेरे सामने और मैं उसको ठग लूँ. उसके साथ जुपिटर अगर किसी का एक्साल्टेड हो गया तब तो 16 आना पूरा हो जाएगा. जुपिटर जिनका एक्साल्टेड होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्राई देयर बेस्ट कि उसको किसी भी तरीके से थोड़ा तकलीफ पहुँचा, वो थोड़ा चीट करूँ, जो भी कर सकते हैं. एंड बाय द टाइम आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गेस्ड the name of that celebrity. She is Rakhi Sawant.
राखी सावंत का इमेज ही ऐसा है कि उसका कैरेक्टर खराब है, फालतू है, कैसी है, बट एक्चुअली उसका नहीं, उसका हमेशा शी इज इन रिलेशनशिप with fraud and cheat people, and with those fraud and cheat people she tries her best to maintain a relationship. तो अच्छे इंसान का क्या डेफिनेशन है? A good human being means you are good and when someone else is doing bad to you, you forgive that person. यही अच्छा प्लानिटरी पोजीशन का यही एक्सप्लेनेशन होता है. तो मतलब राखी सावंत का एग्जाम्पल सुनने के बाद लगेगा कि जुपिटर एग्जाल्टेड नहीं होना ही अच्छा है ना, क्योंकि जुपिटर डेबिलिटेटेड, वेनस डेबिलिटेटेड, ऐसा एक भी इंसान मैं नहीं देखी हूँ जिसका इमेज बहुत हाई नहीं है. आई हैव जुपिटर एंड वेनस डेबिलिटेटेड इन माई ओन हाउस ओनली, वेरी क्लोज रिलेशनशिप, वन जुपिटर डेबिलिटेटेड, वन वेनस डेबिलिटेटेड, आई नो. ठीक है. सो दे हैव वेरी हाई इमेज बिकॉज दे रियली गिव एफर्ट टू हैव अ गुड इमेज. मतलब एक इमेज अच्छा होने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है. मतलब आप किस तरीके से बात करोगे जिससे आपको सब लोग पसंद करेंगे, आप क्या क्या काम करोगे जिससे सब आपको अप्रिशिएट करें, तो ये सोचना पड़ता है. एंड राखी सावंत जैसा जो कि जस्ट मतलब इट्स नॉट फनी, आई एम लाफिंग, इट्स नॉट फनी, आई एम मॉकिंग एक्चुअली, कि राखी सावंत जिसका इमेज बहुत डाउन है एंड हु इज़ अ सेलिब्रिटी एंड इसीलिए इमेज डाउन है, उसका अफेयर होता है और टूट जाता है, उसकी शादी होती है और टूट जाती है. जुपिटर एग्जाल्टेड होने से एक्चुअली ऐसा होता है. जुपिटर अगर किसी का एग्जाल्टेड है, उसके साथ उनका सैटर्न राहु का शापित योग भी है, तो इससे अच्छा हॉरोस्कोप क्या हो सकता है? आप बहुत इंसान अच्छे हो और आपको चीट करने वाले दुनिया में बैठे हुए हैं. जुपिटर वेनस दोनों अगर अच्छा है तो you are a very good human being, but when your Saturn Rahu conjunct means Shapit Yog you are having, then each and every person around you will try their best कि थोड़ा सा चीट कर लूँ. मज़ा आता है. जो इनोसेंट होते हैं ना, चीट करने के बाद जब रोना धोना शुरू कर देते हैं, उनको चीट करने में भी एक मज़ा आता है. जो चीट करते हैं उनको पूछ के देखियो कि किसको चीट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. जो इनोसेंट है उसको चीट करने में बहुत मज़ा आता है. सो टुडे जुपिटर वेनस एग्जाल्टेड इन स्वखेत्री नंबर 2, एंड इसके साथ आई वांट टू गिव यू सम सजेशन ड्यूरिंग नाउ वेनस इज एग्जाल्टेड एंड जुपिटर इज स्वखेत्री, दिस इज कालपुरुष 12th हाउस. 12th हाउस मीन्स हाउस ऑफ दान, डोनेशन करना. एंड हाँ, डोनेशन का मतलब हमेशा अमाउंट ऑफ मनी गिविंग टू सम ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट लाइक दैट. खुद को भी थोड़ा सा एफर्ट देके कुछ करना चाहिए. एंड दिस टाइम इज एक्सेलेंट टाइम विथ वेनस एग्जाल्टेड एंड जुपिटर स्वखेत्री. एक्सेलेंट टाइम, बट नॉट एक्सेलेंट टाइम फॉर मेटेरियलिस्टिक गेन. अगर आप खुद के लिए कुछ प्लान करो, खुद के पैसा इनकम के लिए या इस सब के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो वो सक्सेसफुल होगा ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ. क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के 12th हाउस में ये कंजंक्ट हो रहा है. इसीलिए अगर आप निस्वार्थ होके, सेल्फलेस होके किसी को हेल्प करने का कोशिश कर रहे हो, वो शायद सक्सेसफुल होगा. ओके, बाय, हैव अ नाइस टाइम.